عید الفطر آنے سے پہلے کچھ لوگ یوں فرما رہے ہیں کہ یار ہم کیسے عید منائیں؟ تو میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی 3 دن سے زیادہ نہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا۔ تیسرے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بس اب نہیں، اب نہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو بھی رمضان المبارک کی موتیں ہیں، یاد رکھنا، ایک تو رمضان المبارک خود مبارک مہینہ، مبارک مہینے میں جانے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کی چہیتی بندیاں ہوتی ہیں۔ میرے آپ کے نزدیک وہ کسی طرح بھی جی رہا ہو بندہ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی خوبی ہے۔ اللہ ایک چھوٹی سی خوبی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے، اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں عید کے موقع پر ہمارا یہ کہنا کہ ہم عید نہیں منائیں گے، نہیں، غلط ہے۔ عید منانے کا معاملہ کیا ہے؟ عید میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلا، اس وقت سے عید کے چاند تک ہم نے آپ نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکرانے میں عید دی، شکرانے میں عید دی۔ اور جب عید کی رات آتی ہے تو لیلۃ الجائزہ کی رات کہلاتی ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات کہلاتی ہے۔ اس لیے انعام والی رات میں اللہ کی طرف سے انعامات تقسیم ہوتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو پھر فرشتے گلیوں میں آ جاتے ہیں، گلیوں میں آ جاتے ہیں، اور جو شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اسے مصافحہ کرتے ہیں، اسے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، آج تم بخشے جاؤ گے۔ اور جب بندہ عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان سے غیبی ایک آواز آتی ہے، میرے بندوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم نے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر تم نے میرے بندوں راضی کر لیا ہے۔ مانگو مجھ سے، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگو۔ تو عید الفطر نماز کے بعد مانگنے کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے۔ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، روزدار بندے کو ایسا معاف کر دیتا ہے، ایسا معاف کر دیتا ہے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا۔ کتنی قیمتی عید ہے۔ اور پھر عید میں ہوتا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سنت کیا ہے؟ غسل کرو، غسل کرو، مسواک میں لے کر وضو کرو، ہاں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو اللہ نے اچھے کپڑے دے رکھے ہیں وہ پہنو، اور اللہ نے مال والا بنایا ہے تو نئے کپڑے خریدو، وہ پہنو۔ پھر اس کے بعد کھجور کھاؤ، یہ سنت ہے۔ عید الفطر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے نکلتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے عید کی نماز پڑھو، اور پھر عید کی نماز جب پڑھ چکو تو اس کے بعد پھر یہی پڑھتے ہوئے اپنے روم پہ آ جاؤ۔ میرے بھائیوں،
ईद उल फित्र की नमाज से पहले सदक़ा फित्र अदा करो। सदक़ा फित्र क्यों अदा कर रहे हैं? ताकि जो रोजों में कमी रह गई है, हमसे आपसे कोई गुनाह हो गए, वो गुनाह माफ हो जाते हैं। और दूसरे गुरबा, यतीम, बेवा, मिस्कीन की मदद करो, ताकि वो हमारे और आपके तरह अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सके, हमारे और आपके साथ उठ बैठ सकें। ये सब काम ईद उल फित्र के हैं। तो कोई शख्स जब ये कहता है हम ईद नहीं मनाएंगे, तो गोया नबी की सुन्नतों को नहीं अपनाएंगे माशअल्लाह। इसलिए नहीं प्यारे मुसलमानों, हमारा और आपका भरोसा अल्लाह पर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह वही है जिसने मौत और जिंदगी बनाई। हमारा और आपका ईमान इस पर है कि इंसान एक लुकमा न कम खा के मरता है, न एक लुकमा ज्यादा खा के मरता है। हमारा आपका ईमान इस पर है कि जर्रे जर्रे पर अल्लाह की हुकूमत है, जो वो चाहता है वो होता है। इसलिए ये बात सच है कि जितना गम किया जाए वो कम है कि बहुत सारे लोग हमारे और आपके बीच में नहीं रहे। तो ईद उल फित्र का दिन आज इसका दिन है कि हम अल्लाह के सामने बढ़ें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके लिए ईसाल सवाब, अल्लाह ने माल वाला बनाया है, उनके नाम मस्जिद बनवा दो, रोड बनवा दो, पानी का इंतजाम करवा दो, किसी गरीब की मदद कर दो, जहां दीनी तालीम हो रही हो वहां रूम बनवा दो, सदका जारिया उनके लिए करो। अल्लाह ने कम दे रखा है तो थोड़ा उनके नाम पे निकालो और गरीब को दे दो, यतीम को दे दो, बेवा को दे दो, मिस्कीन को दे दो। और दूसरे क्या है, उनके हक में दुआ खैर करो। ईद उल फित्र का दिन आज इस बात के लिए है कि हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और ईद उल फित्र का दिन इस बात के लिए भी है कि अल्लाह, हम तुझसे अहद करते हैं, जैसे नमाजें हम पढ़ रहे थे, जैसे कुरान हम पढ़ रहे थे, जैसे हम पाक को साफ रह रहे थे और गुनाहों से बच रहे थे, ऐसे ही हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी अमल करेंगे। अहद व पैमान का दिन है, अल्लाह के सामने बातें रखने का दिन है। इसलिए आइए मेरे भाइयों, प्यारे मुसलमानों, ईद उल फित्र में ये जुमला न कहें कि हम ईद नहीं मनाएंगे। वो अल्लाह की अमानत वो भी थे, अल्लाह के पास पहुंच गए, हम उन पर गम और दुख जितना भी करें वो कम है, लेकिन शरीयत को सामने रखकर दुख और गम किया जाएगा। अपने दिल को समझाया जाएगा कि वो अल्लाह की अमानत, वो ईमान की हालत में, वो रोजे की हालत में, वो रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह उनकी जन्नत की रूहों में शुमार फरमा चुका है। हम भी अल्लाह की अमानत हैं, इसलिए अब हमारा ये हक है हम भी इस्लाम की रोशनी में चलें, कुरान और हदीस की रोशनी में चलें और अपने मरहूमीन के लिए दुआए खैर करें, दुआए रहमत करें। और जो मरहूमीन के घर वाले हैं उनके लिए अल्लाह से सब्र जमील की दुआ करें। मैं भी अल्लाह ताला से उन सारे भाइयों के लिए जो दुनिया से चले गए मोमिन और मोमिना, उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए। और जो हयात हैं हम सब की, तमाम इंसानों की, वो हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, कोई भी हो, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम ईद उल फित्र में अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए और कोरोना जैसी बीमारी और कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए और इसके खात्मे के लिए सारे इंसान इससे बच जाए, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान पर रहम फरमा, सारे इंसानों पर रहम फरमा, सारे इंसानों में मोहब्बत, प्रेम, भाईचारगी को पैदा फरमा। या अल्लाह सारे इंसानों के दिलों में अदल और इंसाफ को दाखिल फरमा और ईमानी शान और शौकत के साथ रहने वाला बना दे। इसलिए मुसलमानों, हम ये जुमला न कहें कि हम ईद नहीं मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? हम ये कहेंगे, अल्लाह तू मेरे टूटे दिलों को जानता है,
تو टूटे दिलों को जानता है मेरे अल्लाह कि मेरे दिल में मेरे जाने वालों का कितना गम है, लेकिन शरीयत के आगे हम खामोश हैं। शरीयत का हर फैसला हमें मंजूर है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, हम मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे और उनके जो बचे हुए अफराद हैं उनके लिए सब्र जमील की दुआ करेंगे, उम्र दराजी की दुआ करेंगे और ईद उल फित्र हम इस्लाम की रोशनी में मनाएंगे और कोविड-19 को सामने रखकर मनाएंगे। हम बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे और इसी तरीके से हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे और हम एक दूसरे के घरों में नहीं जाएंगे। सबके लिए दुआए खैर अपने घर में रह के करेंगे। यही सारी बातों पर अमल करना है। अल्लाह मेरी भी मदद फरमाए, आप सब की मदद फरमाए और मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश फरमाए और तमाम इंसानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरा ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचा दो ताकि लोग अल्लाह के और महबूब बन